Good morning, all of you. This is Dr. Aisha Butalia. I welcome you all for today's session 3 on Java programming, bridge course. And today we have Ajinkya Mase, who is going to tell you about how to run the Java code on Visual Studio, on Eclipse, and on IntelligentJ. Already our previous 2 sessions, we have taken one session on introduction on Java programming. I introduced with you the website of w3schools.org. It's a very good source of tutorial. वहाँ पे आपको पूरे steps भी दिए हुए installation के. Second session was by Harsh Kumar, where he introduced how to download Java, okay, how to install it, and how to set the path. And now we have Ajinkya Mase, who will be showing you the same installation procedure using integrated development tool, okay, environment. So using the IDE Visual Studio, Eclipse, and IntelligentJ. So I give this screen to Ajinkya Mase. Can go ahead. Okay, ma'am, may I start? Yes. So firstly, we need to install VS Code. Yes. Yes, Ajinkya Mase. Ma'am, is my screen visible? Yes. मैम पहले तो हमें VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो डायरेक्टली गूगल पे हम डाउनलोड VS कोड डाले तो आ जाती है उसके लिंक. यहाँ से VS कोड इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद जब हम ओपन करते हैं तो ऐसी विंडो आती है जिसमें हमारा अजिंक्य आप थोड़ा सा स्लो जाइए, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी साथ ही साथ ये प्रोसीजर करते जाएं. Actually, ma'am, most of the participants are already using VS Yes, Code. but So even if there are 4 participants who are not done it, let's be a little bit slow. I'm not saying very slow, little bit. Okay? Okay, ma'am. तो यहाँ से हमें VS Code डाउनलोड करना है. बाय डिफॉल्ट वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन डाउनलोड हो जाता है, which is most commonly compatible for all the version of Windows. क्योंकि ज्यादातर लोग 64 बिट ही यूज करते हैं आजकल. तो ये वाला लिंक से वो डाउनलोड कर लेना है. Yes, go ahead. डाउनलोड होने के बाद इट विल बी अ नॉर्मल सेटअप, जिसको बस हमें नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है. इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे ऐसा आइकॉन आएगा विजुअल स्टूडियो का, जिसको ओपन करने के बाद ब्लैंक वर्कस्पेस विंडो यानी ये विंडो ओपन होती है, जिसमें हम अपने वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं. विजुअल स्टूडियो इज मल्टी लैंग्वेज आईडी, जिसमें हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में कोड कर सकते हैं. एंड इट हैज सपोर्ट ऑफ वेरियस एक्सटर्नल आईडीज आल्सो, इंक्लूडिंग Eclipse, JDKs एंड अदर ऑल. तो हमें तो बेसिकली अगर जावा का कोड उसमें करना हो तो ओपन फोल्डर पे पहले वर्क स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा जावा के लिए. तो ओपन फोल्डर पे पहले क्लिक करो. उसके बाद create any folder. Suppose I have already created a folder named Java, and just select it. So it will initialize everything according to that folder. And to code in Java, we need to create a file by the extension .java. As VS Code supports many languages, we need to give proper extension to all the files so that it could recognize, so that the extension which we have installed in VS Code could recognize our file, that which language is compatible to it. From here, we can create a new file .java.
as it is already created. I will not create it again. This is the basic program which I have already written. ये create करने के बाद हमें extension का टैब होता है VS Code में. यहाँ पे आके माइक्रोसॉफ्ट का जावा डेवलपमेंट का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना. प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा ये नेम है उसका. एक्सटेंशन के टैब में आके वी कैन सर्च फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा और यहाँ से वो इंस्टॉल करना है. मैम वॉइस. सो प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जावा ये एक्सटेंशन हमें सर्च करना है. सर्च करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा. उसके बाद वो प्रोजेक्ट फाइल्स एंड रिक्वायर्ड एक्सटेंशन सारे इंस्टॉल कर देगा. And it will ask for the JDK, which JDK version which we have to install or which we would prefer to install. उसमें वो अलग अलग ऑप्शंस देगा जैसे कि JDK माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड जावा डेवलपमेंट टूल किट का एक JDK आता है, वो एक है. डिफरेंट आते हैं, इंटेलिजे का भी आता है, इक्लिप्स का भी आता है, पर मोस्ट सपोर्टेड एंड मोस्ट यूज इक्लिप्स का होता है. तो इक्लिप्स का प्रेफर करना चाहिए क्योंकि एरर्स एंड ऑल वो सपोर्ट ज्यादा करता है सारे डिफरेंट एसडीकेस वगैरह को भी. उसका वहाँ पे वो पूछेगा कि कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जेडीके का. तो एडोप्टियम का इक्लिप्सटेरियम का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है. वो लिंक उधर ही दे देगा VS कोड में. वहां पे क्लिक करने के बाद रिडायरेक्ट करेगा इस वेब पेज पे एडोप्टियम के. यहाँ से टेम्यूरिन 17 LTS डाउनलोड कर लेना है. इसमें 17 वर्जन का जावा डाउनलोड हो जाएगा. डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड्स फोल्डर से हमें बस उसको इंस्टॉल कर देना है. नेक्स्ट करके वो पाथ एंड ऑल ऑलरेडी ऐड कर देगा. हमें स्पेशली जाके ऐड करने की या कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये सब होने के बाद VS कोड एक बार क्लोज करके वापस रीलोड करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा. वह अगर बाद में वापस स्टार्ट करने पे हमें सब वर्क स्पेस ऐसा दिखेगा और वो अपने आप खुद को इनिशियलाइज कर लेगा अकॉर्डिंग टू दी JDK. हाँ, तो अब हमने JDK तो इंस्टॉल कर लिया, VS कोड भी रीलोड कर लिया और हमने जो वर्क स्पेस क्रिएट की थी रीलोड करने के बाद वो वर्क स्पेस अपने आप ओपन हो जाएगी. हमेशा उसको वापस ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और इस फाइल में जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे वर्क स्पेस ओपन हो गया. फाइल इज ऑल्सो ओपन. यहाँ से हम कोई भी कोड रन कर सकते हैं डायरेक्टली, तो वो रन हो जाएगा. एक मिनट, पहले बिल्ड करना पड़ेगा. Just a second. As you can see, program run हो गया. और एक इसमें और एक पॉइंट टू बी नोटेड कि जब हमने VS कोड मतलब जिन लोगों ने VS कोड C++ के लिए कॉन्फ़िगर किया होगा, वो करते वक्त हमने कोड रनर का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया होगा जिसमें डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा प्ले का बटन आता है जहाँ से कोड रन होता है डिफरेंट टर्मिनल्स में. वो एक्सटेंशन जावा को सपोर्ट नहीं करता. जैसे अब मैंने क्लिक करके देखा था, वो नहीं रन करता उसको. इसके लिए हमें डायरेक्टली रन थ्रू करना पड़ेगा. तो यहाँ पे VS कोड का तो हो गया. मैम आई एम डन विथ VS कोड. नाउ may I continue with next idea? Yes, sure. Now the next one is about IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA is IDE which is mostly preferred by students and beginners. We can download it from browser. It is also the part of JetBrains component team which designs the softwares for development
for community as well as professional versions. Open it here. तो इस साइट पे आने के बाद हमें अल्टीमेट एडिशन नहीं लेना है क्योंकि वो पेड है। कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसका सेटअप अराउंड 500 MB का है। वो पाइचार्म के सिमिलर ही है उसका इंस्टॉलेशन वगैरह। तो जो लोग पाइचार्म पाइथन के लिए यूज कर रहे होंगे उनके लिए इजी जाएगा। यहाँ पे बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कहीं पे भी टिक मार्क वगैरह नहीं करना अगर हम ऑलरेडी पाइचार्म वगैरह यूज कर रहे होंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट जेट ब्रेन्स के टूल्स यूनिवर्सली वो सेट होते हैं सारे उनके प्लेटफॉर्म्स के लिए। बस नेक्स्ट करना है और एंड में फिनिश करके क्लोज कर देना है। बाद में हमें वो इंस्टॉल एडिशन दिखेगा हमारे प्रोग्राम्स में, तो वो ओपन करके ऐसा आएगा विंडो जब हम इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करेंगे। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे, एंड्रॉइड, ग्रेडल, मैवन, ये सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो बेसिकली जावा पे ही क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। अगर हमने ऑलरेडी जो एडोब टीएम का इक्लिप्स टेरियम का जेडीके इंस्टॉल कर रखा होगा तो हमें वापस हर बार अलग से कुछ क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर हमने नहीं किया होगा तो इंटेलिजेंट अपने आप इंसिस्ट करेगा हमारे लिए कि इंस्टॉल करोगे। Just a minute. प्रोजेक्ट में मेन फाइल डिलीट हो गई है मेरी, इसलिए वो नहीं दिख रहा। और हमें अगर ये सब करने के बाद, पूरा कॉन्फ़िगर होने के बाद, अगर चेक करना होगा कि हमारा कौन सा वर्जन है, जैसा हर्ष ने बताया कि जावा वगैरह का कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, अगर हमें इसको क्रॉस वेरीफाई भी करना होगा ना कि हमने कौन सा जेडीके इंस्टॉल कर दिया है या फिर जावा वर्जन, तो यहाँ पे आके बस कमांड प्रॉम्प्ट में आके जावा -वर्जन ये डाल देना है। तो यहाँ पे हमारा जेडीके वर्जन जो हमने इंस्टॉल किया है वो दिखेगा उसके पूरे डिटेल्स के साथ। We can also verify it from environment variables. यहाँ पे पाथ में हमें दिख जाएगा हमारा Eclipse Adobe TM का JDK. Okay, ma'am. So I'm done with it. Okay, so thank you very much, Ajinkya Mase, for introducing us Intelligent J and the other platform which you suggested, Eclipse, VC Code. ma'am, Eclipse is remaining. Yes, Just a minute, ma'am. in next session we will be going through Eclipse. आप वो बता दीजिएगा. We will stop this session 3 on VS Code and Intelligent J. जैसे पिछले सेशन में हमने मैन्युअली डाउनलोड करके पाथ सेट किया था और वहाँ पे एनवायरनमेंट कंट्रोल पैनल में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट किए थे, सिमिलरली ये दोनों आईडी पे भी जाके आप वैसे सेट कर सकते हो। वहाँ पे ऑटोमेटिकली कंपाइल एंड रन का ऑप्शंस है,
So this is the way you can use these two platforms. In another session 4 we will be introducing Eclipse. आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा आईडी यूज करना है. यूआई चेंज होता है, लुक एंड फील चेंज होता है, और एक बार आप एक यूआई से कंफर्टेबल हो जाते हो तो आपको वही पसंद आने लगता है. अल्टीमेटली फीचर्स सब एक ही है, बट आई विल गिव यू अ होमवर्क कि आप ये तीनों प्लेटफॉर्म्स प्लस कमांड प्रॉम्प्ट, हमने ये चारों चीजें आज हम देखे हैं. आप सेशन 4 के बाद में यू जस्ट नीड टू do the homework and tell me ki out of these 4 platforms which platform you will take for and why, so that अगर आप why बोल रहे हो तो आपको कुछ उसमें benefits दिखने चाहिए, तो वो आप मुझे बताएंगे. अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो और आप उस पर कंफर्टेबल हो चुके हो तो आपको कंफर्ट जोन से नहीं निकलना है, तो आपको मैं एक होमवर्क दूंगी कि आफ्टर सेशन 4 आप मुझे ये बताएंगे कि आप इन चारों में से कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहेंगे एंड व्हाई, and what are the benefits, okay, of each. So thank you very much, Ajinkya, for introducing these two platforms, and thank you all the participants for patience listening. This is Aisha Butalia signing off for session 3 of Java Programming Bridge course. Have a nice day.